Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, GIC notification details are now available. It's a cruel joke with unemployed people. If we go into the finer details of this notification, for that such a big advertisement was given by GIC, the bifurcation of vacancies are finance chartered accountants 15, general vacancies 15, legal 4, insurance specialization 10, overall 44. Such a beautiful advertisement, but vacancies are just 15 for all category of people. So there is a further reservation in this. Should you apply? We will discuss this. Then qualification. Graduation with minimum 60%. Graduate with 55% in case of SC/ST. So all graduates are not eligible. Only selected graduates are eligible, and that too they have to compete for just 15 vacancies on all India basis. Usually I don't recommend such type of examination. So if you cannot score more than 95% in a competitive examination, my sincere advice is avoid such exam. Because 15 vacancies means cutoff has to be higher than 90%. And if you prepare for the exam and ultimately land up in a negative result, it will only give you disappointment. So it is better to avoid such examinations where vacancies are just negligible. Rest is your choice. I will explain the details in this video for the candidates those wish to still appear for this competition. The relevant date is 1st February 2021. Any person who has attained the age of 21 and not more than 30 years on 1st February 21 is eligible. Qualification will also be seen as on 1st February 21. That means the question, if I am in final year, whether I am eligible, question is no. Then 9th May is the date of examination. So just 2 months. Now exam is 3 layer. First is part A, second is part B, third is part C. Part A involves 40 questions of higher order reasoning ability. Part B involves test of reasoning, English, general awareness, numerical ability, and computer literacy. And third part is descriptive, essay writing, letter writing, essay writing, etc. Minimum qualifying marks is 60% for general and OBC, 50% for SC/ST. But this is minimum qualifying. But when you will see, the merit may not be less than 90%. Because vacancies are just 15. There will be 15 people across the country. Means if they take 3 times or 4 times the candidate to interview, that means they need just 45 candidates. So there will be 45 candidates across India. Those will score very easily more than 90. So that will become cutoff. Cutoff is what? The marks scored by candidate in order of merit. So if you are only taking 45 candidates to the next ladder, that is for interview, there will be hardly candidate who will have less marks. Only very, very rare candidates you are taking to the next level. So this we have to keep in mind and see your own potential and decide accordingly. I am putting all the things very, very plain so that tomorrow you are not feeling deceived or you are feeling disappointed by such level of competitions. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे.
आज सुबह अखबार में बहुत ही सुंदर एडवर्टीजमेंट आया, उसको देख के खुश हो गए सब लोग। पर जब अब डिटेल आई है तो बिल्कुल उसी मुहावरे की तरह है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। मतलब इससे क्रूअल जोक ऑन द एडवर्टीजमेंट। एक ऑल इंडिया कंपटीशन होने जा रहा है जिसमें जनरल के लिए सिर्फ 15 वैकेंसीज हैं। जनरल स्ट्रीम की बात कर रहा हूं मैं, जनरल कैंडिडेट्स की बात नहीं कर रहा, जनरल स्ट्रीम, क्योंकि 15 वैकेंसीज हैं फाइनेंस की जो चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए उनको, 4 हैं लीगल और 10 हैं इंश्योरेंस बैकग्राउंड के। तो जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए सिर्फ 15 सीटें हैं, और वो भी कौन से ग्रेजुएट, जिनके मिनिमम 60% हो, और अगर SC ST हैं तो कम से कम 55% मार्क्स हो। दैट मीन्स ऑल ग्रेजुएट्स आर नॉट एलिजिबल। कट ऑफ डेट है 1 फरवरी 2021। दैट मीन्स जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी एलिजिबल नहीं है। उम्र है 21 साल से 30 साल। और एग्ज़ाम की भी बड़ी लेयर्स हैं, 3 लेयर का एग्ज़ाम है। पार्ट A है जिसमें हायर ऑर्डर ऑफ रीजनिंग एबिलिटी है, पार्ट B है जिसमें 4 टेस्ट हैं, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी, और पार्ट C है जिसमें एसे, प्रेसी, लेटर राइटिंग है, डिस्क्रिप्टिव है। मिनिमम क्वालिफाइंग भी है, मार्क्स हैं 60% जनरल और OBC के लिए, 50% SC ST के लिए। अब आपका प्रश्न ये होगा कि मुझे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल साफ सुथरी बात आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरह के कंपटीशन में 95% भी कट ऑफ हो सकता है, और 90 से तो ऊपर ही होगा, 90% से ऊपर। तो यदि आपको कॉन्फिडेंस है कि आप 15 वैकेंसी के लिए उतने कैंडिडेट्स में आ सकते हैं जिनका इंटरव्यू होगा 45 या 50 कैंडिडेट्स में ऑल ओवर इंडिया से, तो आपको ऐसे एग्ज़ाम को वेंचर करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि जहां हजारों वैकेंसीज निकलती हैं वहां भी मैं बड़ी मुश्किल से कट ऑफ पार कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं, तो हमें ऐसे एग्ज़ाम्स में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अपनी सेल्फ असेसमेंट करके आप अप्लाई करिए, क्योंकि एप्लीकेशन का मतलब है फीस, उसके साथ फिर आप तैयारी भी करोगे उस एग्ज़ाम की, और वो किसी और एग्ज़ाम की कॉस्ट पे होगा। तो कई बार हम जो ये मल्टीपल एग्ज़ाम देते हैं ये भी हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता है। तो आप इसको ध्यान से सोच के करिए। बाकी जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मैंने मॉर्निंग के वीडियो में भी सजेस्ट किया है, और अभी भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप तैयारी कर सकते हैं। मॉक टेस्ट भी मैंने उनको कहा सर्विस प्रोवाइडर को कि वो अटेम्प्ट करेंगे आपके लिए, और जनरल अवेयरनेस का सोर्स मैंने आपको बताया ही है। दोनों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, और मॉक टेस्ट का लिंक मैंने कमेंट में भी दिया है। पर जो मेरी राय यही है कि वही लोग इस एग्ज़ाम को अप्लाई करें जो इस बात के लिए कॉन्फिडेंट है कि हम 90% से अधिक स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि कम वैकेंसी का मतलब ही होता है हाई कट ऑफ। क्योंकि कट ऑफ क्या होता है, जो लोगों के मार्क्स हैं वो इन ऑर्डर ऑफ मेरिट रखे जाते हैं। तो जब आपकी वैकेंसी 15 है और 45 या 50 लोगों को आप इंटरव्यू स्टेज पे लेके जाओगे, तो 40-50 कैंडिडेट तो ऐसे होंगे ही ना, सुपर इंटेलिजेंट, जिनके एबनॉर्मल मार्क्स होंगे। तो बाकी कैंडिडेट का क्या स्कोप है उसके अंदर, बहुत लिमिटेड। सो मैंने बिल्कुल फेयर एनालिसिस आपको की है। राइट एडवाइस एट राइट टाइम ही ये चैनल है। इसमें हम मतलब ऐसी बात नहीं करेंगे आपको तो एक वैकेंसी चाहिए कर लीजिए, नहीं, बिल्कुल रियल असेसमेंट करके आप चलिए। क्योंकि पैसा भी आपका है, मेहनत भी आपकी है, और कोई भी एग्ज़ाम हम देते हैं पास नहीं होते तो निराशा तो होती है। तो हमें वही एग्ज़ाम पिक करने चाहिए जो हमारे पोटेंशियल के अकॉर्डिंग है। गॉड ब्लेस यू ऑल।